पंखों पर था भरोसा, दिल में था जुनून, आसमान को छूने का, वतन की रक्षा करने का। MiG-21 तो सिर्फ विमान नहीं, एक गाथा है, एक जज्बा है। तेरी आखिरी उड़ान, तेरे अमर होने का ऐलान है। MiG-21 आखिरी सलाम। नमस्कार, संसद टेलीविजन के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार। 6 दशक, सैकड़ों लड़ाइयां, हजारों उड़ानें और अनगिनत बलिदान, यह है उस सुपरसोनिक फाइटर जेट की कहानी जिसने भारतीय आसमान की रक्षा की और जिसे दुनिया ने फ्लाइंग कॉफिन और वॉर मशीन दोनों कहा। MiG-21 एक मशीन जिसने इंडियन एयरफोर्स को आसमान की ऊंचाई जैसी ताकत दी। 62 वर्षों की एक ऐसी कहानी जिसमें गौरव, विजय और बलिदान सब है। यह है 1963 से 2025 तक चली MiG-21 की बेमिसाल कहानी। जब भारत ने सोवियत संघ से MiG-21 खरीदा, तब ये IAF का पहला सुपरसोनिक जेट था। इस विमान ने भारत को वायु शक्ति की नई ऊंचाइयां दी। 1965 में पहली बार ये जेट युद्ध में उतरा, लेकिन 1971 का युद्ध MiG-21 की असली परीक्षा थी। कारगिल से लेकर बालाकोट तक MiG-21 ने हर बार ये साबित किया कि उसकी धार और उसका वार पूरे कार्यकाल में तेज ही रहा। F-104 स्टार फाइटर जैसे आधुनिक जेट को इसने मात दी। भारत ने MiG-21 सिर्फ खरीदा ही नहीं, बल्कि बनाया भी। 850 से अधिक MiG-21 में से 600 भारत में बने। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ी और IAF को सबसे बड़ा बेड़ा मिला। (1980) और 1990 के दशक में MiG-21 IAF की रीढ़ था। लेकिन हादसों की संख्या बढ़ने लगी थी। इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। MiG-21 came to us. The first aircraft that came was the Type 74. There were no trainers at that time. So the first solo that you went was on the MiG-21 itself. All that happened was that you were shown a circuit pattern on the Hunter aircraft. So you flew a Hunter, it's trying to imitate the circuit pattern of a MiG-21, which is nothing like it. The difficulty was not only that there was no trainer, there was no simulator, but also that the entire cockpit, nothing was written in English, it was all in Russian. Oh. As far as the instruments went, well, we were used to knots. Here suddenly we had changed from knots to kilometers per hour. That was what speed gave you. As far as your height was concerned, it was in meters and kilometers. So it was really getting used to it was quite difficult. So the first solo was in fact you were more lost until you came back and you didn't know how we actually managed it. Because also what happened, the MiG-21, we were all flying in space suits. Believe it or not, Yuri Gagarin, when he went up in Sputnik 1, had the same pressure suit and the pressure helmet for the first solo. You could hardly move your neck to one side or the other. किसी भी दौर के बहुत कम सुपरसोनिक जेट और खासकर 1960 के दशक के विमान इतने सारे मिशनों में कामयाबी से शामिल हुए थे। MiG-21 ने 1965, 1971
और 1999 के भारत पाक युद्धों में, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई। हिंदुस्तानी हवाई फौज ने नाक में दम कर दिया है। एक हवाई जहाज जाता है और दूसरा आता है और 20-20 मिनट ऊपर नाचता है। 40% फौज और सामान हलक और तबाह हो चुका है। So the MiG-21 has proudly served the nation for last 62 years. From being the most advanced fighters during the war of 1965 and 71, it has remained the vanguard of all military action by India. Even during Op Sindoor, it was a legacy fighter. However, it was tasked for ORP duties and we were ready to defend the skies if the demand raised. 1963 में मिकोयान गुरेविच द्वारा डिजाइन किए गए पहले MiG-21 F-13 टाइप 74 से शुरुआत हुई थी। इसके बाद करीब 850 MiG-21 वेरिएंट्स भारतीय वायुसेना में शामिल हुए, जिनमें से ज्यादातर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में लाइसेंस के तहत बनाए गए थे। MiG-21 की खरीद 1980 के दशक के मध्य तक चलती रही और 1990 तक ये विमान IAF की करीब 60% लड़ाकू ताकत का हिस्सा बन चुका था। Managed to take part in the war, which was a very great thing, both on the Eastern Front as well as the Western Front. We were in 30 Squadron. We fought on both the fronts. Back to Command 26 Squadron, that was the BIZ aircraft. I was lucky enough to fly all three types, the BIZ, the Type 96 and the Type 77, both in TAC Day as well as Kuvareli. So I was lucky to fly all the three types, but the first love always remains the Type 77. What a beauty she was. Today is the day when I think we are bidding goodbye to one of the most wonderful aircraft. It had no aids, it had no nav aids, it had no high profile systems. We navigated by moving thumb display on the map and maybe a radio compass sometimes depending on the SU most of the time, but most of the time we depended on pilot skill to get us through various ferries and various other complicated situations. One of the great aircraft. अपने समय में MiG-21 की उड़ान क्षमता काफ़ी प्रभावशाली थी। इसकी अधिकतम रफ्तार मैक 2.1 यानी ध्वनि की गति से दोगुनी थी। इसमें 50,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई तक उड़ान और तेज़ी से ऊंचाई पकड़ने की अद्भुत क्षमता थी, लेकिन इसकी फ्लाइंग रेंज और हथियार ले जाने की क्षमता यानी पेलोड सीमित था। शुरुआती मॉडलों में साधारण एवियोनिक्स, कम विजिबिलिटी और धीमी गति पर संभालने में दिक्कत होती थी। अनुभवी पायलटों ने इसे पायलट का विमान कहा, जिसमें जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती थी और लापरवाही की तो बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं थी। समय के साथ लगभग 450 MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनमें लगभग 200 पायलटों की जान गई और कई बार जमीन पर भी नागरिकों की मौत हुई। इन हादसों की वजह से MiG-21 को भारतीय मीडिया ने उड़ता ताबूत और विधवा बनाने वाला जैसे नाम दे दिए। फिर भी इन विमानों को उड़ाते रहना IAF की मजबूरी बन गई, क्योंकि विकल्प नहीं थे। ऐसा मुख्य रूप से स्क्वाड्रन की संख्या बनाए रखने के लिए किया गया। 2019 से ही MiG-21 को हटाने के प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन देशी फाइटर जेट्स के विकास में देरी और नए विमानों की धीमी खरीद प्रक्रिया के चलते वायुसेना के पास MiG-21 को ही कुछ और सालों तक चालू रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए इनकी तकनीकी उम्र बढ़ाई गई और इन्हें उनके मूल डिजाइन से कहीं आगे की भूमिकाएं निभाने पर मजबूर होना पड़ा। MiG-21 की सेवा इतनी लंबी चलने का एक बड़ा कारण था देशी हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम में बार बार की देरी। ये प्रोजेक्ट 1983 में खासतौर पर MiG-21 को बदलने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन जब कार्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाया तो अंतर की भरपाई के लिए भारतीय वायुसेना ने 1990 के दशक के अंत में 125
मिग 21 बिस विमानों को अपग्रेड करके बाइसन वर्जन में बदला। इसमें भारतीय, रूसी, फ्रेंच और इजरायली टेक्नोलॉजी जैसे रडार, एवियोनिक्स और कई अन्य सिस्टम लगाए गए। हालांकि मिग 21 में लगे पुराने टुमांस्की R-25 इंजन नहीं बदले गए, लेकिन उन्हें थोड़ा अपग्रेड किया गया ताकि भारी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नए उपकरणों को संभाल सकें। इसके साथ ही इसमें रूसी सुपर कॉर्पियो मल्टीमोड रडार और फ्रांस का टोटेम 221G रिंग लेजर गाइडेड नेविगेशन सिस्टम लगाया गया। Yes, it's a love story. We fell in love with the aircraft as soon as we reported in Tezpur. After OCU, we reported to 30 Squadron to do our MiG conversion. Sleek line, the simplicity of the aircraft, and not only that, we were surprised. The checks and procedures were, simpler than the aircraft we had flown previously. Easier to learn. And yes, reliability. We got good flying. We got it in a concentrated dose. I can vouch for it for the 75 hours that I flew on the MiG-21 in Tezpur. Not once after I pressed the starter button did I come back. And this is the reliability that it delivered in the 71 war. The 71 war in the East, the air battle, I will clearly say, was won by the MiG-21. इन सब को देश में बने नेविगेशन और अटैक कंप्यूटर से जोड़ा गया, जिससे पायलट को हथियार छोड़ने की जानकारी हेड अप डिस्प्ले HUD पर दिखाई देने लगी। इस अपग्रेड में और भी आधुनिक उपकरण जोड़े गए, जैसे थेल्स का EWS-21 रडार चेतावनी सिस्टम, इजरायली काउंटर मेजर डिस्पेंसर CMDS, वीडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स काउंटर मेजर ECM सिस्टम। अब MiG-21 बाइसन कई तरह के हथियार ले जाने में सक्षम था, जैसे रूसी R-73 और R-77 एयर टू एयर मिसाइलें, KH-31 मध्यम दूरी की एयर टू सरफेस मिसाइलें, GSH-23 दो नली वाली 23 mm तोप, MiG-21 ने कई तरह के मिशन किए, जैसे कि बमबारी, दुश्मन विमानों को रोकना, जासूसी, बॉम्बर्स को एस्कॉर्ट देना और नए पायलटों को ट्रेनिंग देना। MiG-21 को बड़े पैमाने पर किए गए अभियानों, लार्ज फोर्स एंगेजमेंट्स में भी शामिल किया गया। इसका मकसद दुश्मन को भ्रमित करना और असली लक्ष्य को छुपाना था, जिससे दुश्मन को बड़ी संख्या में अपनी फोर्स भेजनी पड़ती थी और उसे रणनीतिक नुकसान होता था। पश्चिमी वायुसेना तो छोड़िए, खुद रूसियों ने भी कभी ये नहीं सोचा होगा कि MiG-21 को इतने बड़े स्तर के युद्ध अभियानों में इस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भारतीय वायुसेना की तकनीकी, ऑपरेशनल जुगाड़ की कला और बेहतर युद्ध कौशल का लोहा मानने वाली बात थी। वायुसेना की MiG-21 पर निर्भरता चॉइस नहीं बल्कि मजबूरी थी। इतने लंबे समय तक MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कृत्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना तक या केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब MiG-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की हो। 1971 का वार भला कौन भूल सकता है। MiG-21 ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान विपरीत परिस्थितियों में जिस दिन ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, उसी दिन उस युद्ध के परिणाम की रूपरेखा तय कर दी गई। इसके अलावा भी
इसके लंबे इतिहास में अनेक ऐसे मौके आए जब MiG-21 ने अपनी डिसाइसिव कैपेसिटी साबित की है। MiG-21, yes, it has been the workhorse of the Indian Air Force. We've inducted it in 1960s and still continuing with it. And this has been actually one of the most mass-produced supersonic fighter jet, if I can say. About 11,000 or so were produced, and more than 60 countries have operated it. It's a design which is very limited numbers, like Delta with the tailplane. And we've used it for our training after the initial conversion means after getting commissioned, conversion onto fighters. So my first experience was in 1985 when I got immediately after conversion I went to Tezpur and we flew that time called the Type 77, one of the MiG-21s. So after flying the Kirans, it was a revelation that the aircraft could feel like this. It's an amazing aircraft to fly, very maneuverable and very simple design, but it requires some kind of initial training for you to get used to it. It is good for its rate of climb. It was made as an interceptor, so at max reheat it could climb more than 200-250 meters per second. So I think it is going to be one aircraft which is going to be missed by people who have flown it earlier. But yes, everything has time and place. Now we have to move on because this technology is old. It's very difficult to maintain this technology now. So we've decided to now call it a day for this aircraft and move on to the new platforms like the Tejas Mark II, Rafales have come in, Su-30s are already operating. So these platforms will take this place. इतने विस्तृत आकाश की रक्षा, विदेश से लड़ाकू विमानों की धीमी खरीद और देशी विमान निर्माण में देरी के कारण IAF के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। उसे अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स MiG-21 जैसे पुराने विमानों के इर्द गिर्द ही तैयार करनी पड़ी। सीधी बात कहें तो ये सोवियत जमाने का फाइटर जेट एक एनालॉग युग का जीवित उदाहरण था, जो डिजिटल युग में भी जूझता रहा, लेकिन अब बहुत समय हो चुका था। रिटायरमेंट जिंदगी की सच्चाई है। मानव हो या मशीन, सबको एक दिन रिटायर होना पड़ता है। MiG-21 भारतीय वायुसेना का वो जेट जिसने 6 दशकों से ज़्यादा समय तक आसमान में परचम लहराया, कई युद्धों में अपनी ताकत और भरोसे का सबूत दिया और भारत की हवाई शक्ति का पर्याय बन गया था। आज जब यह लड़ाकू विमान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहा है, तो इसके साथ जुड़ी शौर्य गाथाएं हमेशा ही हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। MiG-21 महज एक विमान का नाम भर नहीं है, बल्कि यह भारतीय वायुसेना के साहस, समर्पण और पराक्रम का प्रतीक है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पंखों पर था भरोसा, दिल में था जुनून, आसमान को छूने का, वतन की रक्षा करने का। MiG-21 तो सिर्फ विमान नहीं, एक गाथा है, एक जज्बा है। तेरी आखिरी उड़ान, तेरे अमर होने का ऐलान है। MiG-21 आखिरी सलाम।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।